Hello everyone. Our today's chapter is My Childhood. This chapter is an extract from the autobiography of the missile man and late President of India, the most revered APJ Abdul Kalam. In this chapter, he has tried to reveal the realities of the 19th century Indian society, the good, bad, and ugly situations he had to face because he was a Muslim. Through his experiences, he is trying to make us aware of the need to be rational and tolerant individual. Uh, Kalam examines his early life efforts, hardships, luck, chance that transformed his life totally. First of all, I want to tell you about the most revered person, Mr. APJ Abdul Kalam. He was born in 1931, the son of a little educated boat owner in Rameshwaram, Tamil Nadu. His father also was also the imam of the small mosque in Rameshwaram. He had an unparalleled career as a defense scientist, culminating in the highest civilian award of India, Bharat Ratna. As a chief of the country's defense research and development programmer, Kalam demonstrated a great potential for dynamics and innovations that existed in seemingly moribund research establishment. This is the story of Kalam's own rise from obscurity and his personal and professional struggles, as well as the story of Agni, Trishul, Nag missiles that have become household names in India and that have raised the nation to the level of a missile power of international reckoning. Kalam died on 27 July 2015 while delivering a speech at IIM Shillong, Meghalaya. So I am going to tell you the outline of the story now. This is the journey of a person from a middle class Muslim family in Rameshwaram to the president's house. The journey was not smooth. He had to struggle and face several challenges as he moved ahead in his life. In his childhood, he was greatly influenced by his parents, his teachers, and his friends. His father, Janul Abidin, was not educated, but he was a very generous and kind person. He was not rich, but provided a secure childhood to Abdul and his brothers and sisters. Abdul inherited honesty and self discipline from his father, and faith in goodness and deep kindness from his mother. Kalam earned his first wages by helping his cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram. He had three close friends, Ramananda Shastri, Arvindan, and Shiv Prakasan. They were all belonging to Orthodox Hindu Brahmin families. He speaks about a very unfortunate incident that affected him and his friends very badly. A teacher showed an discrimination in the classroom by separating him from his close friends. The problem was resolved by my friend Ramananda's father, the chief priest of the Rameshwaram temple. In this story, APJ Abdul Kalam was greatly influenced by his science teacher, Shiv Subramanyam Iyer. He learnt the lesson of breaking social barriers from him. Iyer invited him to his home for a meal. His wife was an Orthodox Brahmin who refused to serve food to a Muslim boy in her so called ritually pure kitchen. Iyer served him with his own hand and sat down beside him to eat his meal. He convinced his wife to serve meal with her own hands and thus was successful in changing the conservative attitude of his wife.
From higher education, he sought permission from his father to leave Rameshwaram and study the district headquarters in Ramnathpuram. He said, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? To his hesitant mother, quoting Khalil Gibran, he said, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. So, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक तो अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड, कैसा बचपन था, किन जो है सोशल इविल्स को उन्होंने फेस किया था अपनी चाइल्डहुड टाइम में, कैसे स्टूडेंट थे वो, उनका जो है कैसा जो है स्कूल एटमॉस्फेयर था। बाद में जो है जब वो अपना शहर छोड़ करके, अपना कस्बा छोड़ करके जो है बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, तो उनकी मदर जो है वो उनको भेजने में हिचकिचा रही थी, लेकिन उनके फादर जो है कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे जो उनकी मदर को कन्विंस कर लिया उन्होंने। सो नाउ वी विल गो थ्रू द स्टोरी। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं या जानते हैं जो एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, स्किल्ड हो वो, और एक बड़ा स्टेट ऑफिसर हो? APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. और ऐसा एक नाम हमारे मन में जो आता है वो सबसे पहले क्या है? APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जो है साइंस में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जिन्होंने हमारे देश को जो है काफ़ी ऊपर पहुंचाया है साइंस फील्ड में। उन्होंने जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए स्पेस में, डिफेंस के फील्ड में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह बनाई हैं, बहुत सारे जो है फेमस मिसाइल्स जैसे अग्नि, पृथ्वी, जिनको हम घर घर में जानते हैं। और वो 21st सेंचुरी में जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर के गए, क्योंकि उन्होंने जो है इतना ज़्यादा काम जो है साइंस फील्ड में किया। और वो 2002 में हमारे 11th प्रेसिडेंट बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर, और उसी में जो वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। सो ये जो पूरा चैप्टर है ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, एक छोटा सा उनके चाइल्डहुड के ऊपर बेस्ड एक पार्ट है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. अब यहाँ पर जो है APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए। वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे? आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास। अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर मद्रास, पहले इसको मद्रास बोला जाता था। वहाँ पर जो है उनका जन्म हुआ था, मद्रास स्टेट में, रामेश्वरम में। माँ फादर जैनुल आबेदीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अब यहाँ पर वो अपने फादर के बारे में बताते कि मेरे पिताजी जैनुल आबेदीन, वो जो है ज़्यादा उन्होंने एजुकेटेड नहीं थे, फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी उनके पास, ना ही ज़्यादा पैसा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इतनी सारी डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। वो पैदाइशी जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी लेकर के जो उन्होंने जन्म लिया था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे। यहाँ पर हमने APJ अब्दुल कलाम जो है नाम है उनका,
बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मुस्लिम्स जो होते हैं उनमें जो है फादर और ग्रैंडफादर, उनके पूर्वजों के नाम जो है साथ में नाम में ऐड किए जाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, यानी कि जैनुल आबिदीन लास्ट में उनके फादर का नाम है और ये शायद उनके ग्रैंडफादर का नाम है। तो ये पूरा नाम जो उनका क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। फिर वो अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि मेरी मम्मी के रूप में उन्हें, उनकी मम्मी का नाम क्या बताया गया है? आशी अम्मा। उनके रूप में उन्हें एक बहुत ही आइडियल हेल्पमेट मिला, एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला, सहायक मिला। I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. अब वो अपनी मम्मी के बारे में बताते कि वो कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड थी। वो अपने परिवार का पेट तो भरती ही थी, साथ में जो है बाहर के लोगों को भी खाना खिलाती थी डेली। वो कहते कि मुझे ध्यान से याद नहीं है कि कितने लोगों को वो प्रतिदिन जो है उनका पेट भरती थी, खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर ये ज़रूर पता है कि जो है फार मोर आउटसाइडर्स ईट विद अस। हमारे साथ जो है बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी खाना खाया है। हमारी फैमिली के लोग जो है कम होते थे, लेकिन बाहर के लोग जो है ज़्यादा खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब वो अपनी फिजिक के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में बताते हैं इस सेकंड स्टेंजा में, इसके सेकंड पैराग्राफ में, कि मैं जो है बहुत सारे मेरे जो भाई बहन थे उनमें से एक बच्चा था अपने माँ बाप का, और मेरी हाइट जो है छोटी हाइट थी। शॉर्ट बॉय मीन्स ज़्यादा लंबी हाइट ना होना, छोटी हाइट का। और मेरी जो लुक्स थी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड, यानी कि ज़्यादा अच्छी लुक्स नहीं थी। और वो उसके माँ बाप कैसे थे? उसके बजाय बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा जो है वो लंबे और बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने जो है पूर्वजों के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब वो बताते हैं कि वो कहाँ रहते थे रामेश्वरम में। उनका घर जो है पक्का घर था। उस टाइम पे जो है पक्के घर होते नहीं थे नॉर्मली, लेकिन उनके पूर्वजों का बनाया हुआ 19th सेंचुरी का हाउस था जिसमें वो रहते थे। वो लाइमस्टोन और ब्रिक से जो है बनाया गया था। और वो कहाँ रहते थे? रामेश्वरम की मॉस्क मस्जिद वाली गली में रहते थे। माई austere फादर यूज टू अवॉइड all inessential comforts and luxuries. Austere means simple, strict. यहाँ पर जो उनके फादर के बारे में क्या बताया गया है कि उनके फादर बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड भी थे। इसीलिए जो अपने फादर के बारे में क्या कहते हैं कि वो इनएसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज़ को जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। वो इन सब चीज़ों में जो है ध्यान नहीं रखते थे कि जो बहुत ज़्यादा शाही ज़िंदगी जीनी चाहिए। वो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हीं का यूज़ करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, medicines or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अब वो क्या कहते हैं कि वैसे तो जो है हमें, भले ही मेरे फादर जो है इन एसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज़ को अवॉइड करते थे, लेकिन फिर भी हमें जो है मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी की गई थी मेरे मम्मी पापा के द्वारा। इन टर्म्स ऑफ फूड, समय से हमें अच्छा खाना मिलता था, अच्छी दवाइयाँ, कपड़े पहनने के लिए मिलते थे। और वास्तव में अगर मैं कहूँ तो मेरा जो चाइल्डहुड था काफ़ी सिक्योर था, सुरक्षित था, अच्छा चाइल्डहुड था। बोथ मटेरियली, भौतिक रूप से भी मुझे जो है, मटेरियल मीन्स सभी सामग्री मुझे टाइमली अवेलेबल होती थी, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मम्मी पापा का, भाई बहनों का जो है मुझे प्यार भी मिला। तो यहाँ पर जो हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, इनमें हमें क्या पता चला है अब्दुल कलाम के बारे में, कि उनका जन्म जो है रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु में।
जो कि मद्रास में स्थित है। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनके फादर जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इतनी डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी एक पत्नी थी उनकी, और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, और बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करती थी। उसके बाद वो क्या बताते हैं, अपनी लुक्स के बारे में बताते हैं कि उनकी लुक्स जो है ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भले ही उनकी मम्मी पापा जो काफ़ी सुंदर थे, स्मार्ट थे, लेकिन अब उनका घर जो है काफ़ी अच्छा घर था उस समय के अकॉर्डिंग, और उनको जो है सभी फैसिलिटीज़ उनके फादर ने प्रोवाइड की थी, चाहे वो मटेरियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, वो सब तरह का सुख जो है उन्हें प्राप्त हुआ। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. Now, APJ Abdul Kalam tells about the Second World War when it broke out. It broke out in 1939. 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था जब वो 8 साल के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. और वो क्या कहते हैं कि उस टाइम पे जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उन्हें नहीं पता कि क्या कारण थे कि अचानक से जो है मार्केट में इमली के बीजों की डिमांड बढ़ जाती है। लोग जो है इमली के बीजों की जो है डिमांड करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। तो अचानक से जो है 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provisional shop on Mosque Street. और यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, जब इन टैमरिंड सीड्स की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ी तो वो क्या करते थे, डेली जो है कुछ सीड्स वगैरह कलेक्ट करके लाते थे और उनको प्रोविजनल शॉप पे बेच देते थे। मस्जिद वाली गली में जो प्रोविजनल स्टोर था वहाँ पर वो उसको बेचते थे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. और एक दिन की कलेक्शन जो है, जो बीज बेचने से जो उनको पैसे मिलते थे वो कितना होता था, प्रिंसली सम मीन्स जेनरस अमाउंट, आयरनिक अमाउंट, वो क्या थी, 1 आना। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of in Dinamani. अब वो क्या बताते हैं, माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो क्या करते थे, मुझे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ बताते रहते थे, उसके बारे में जो है नई नई जो स्टोरीज हेडलाइंस थी वो बताते रहते थे, विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. So here we come to know that Dinamani is the name of a daily newspaper. दिनामनी जो न्यूज़पेपर था उसकी डेली हेडलाइंस में जो है वो उनको देखते भी थे, और उनके भाई जो जलालुद्दीन थे वो भी उनको बताते थे उनके बारे में. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. हमारा जो एरिया था वो थोड़ा सा अकेला होने की वजह से इस वॉर के प्रभाव से बचा हुआ था. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. अब यहाँ पर जो अब्दुल कलाम थे काफ़ी छोटे थे तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो क्या बताते हैं कि हमारा एरिया जो बिल्कुल सुरक्षित था आइसोलेटेड होने की वजह से, लेकिन जो है थोड़े दिनों के बाद जो है इंडिया में क्या अंग्रेज़ों ने फोर्स करना शुरू कर दिया. एलिड फोर्सेस क्या हैं, इंडिया की जो फोर्स थी उनको भी जो है इन फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाने लगा. और एलिड फोर्सेस कौन थी, यूके, यूएसए और रशिया की जो फोर्सेस थी, आर्मीज़ थी, उन जो कि युद्ध कर रहे थे, वॉर कर रहे थे, उनमें जो है उनके साथ मिल कर के जो है इस युद्ध को लड़ने के लिए उनको भारत वालों को फोर्स किया जाने लगा, इंडियन आर्मी को फोर्स किया जाने लगा. और तभी जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया. इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति जो है डिक्लेयर कर दी गई थी. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और सबसे पहला एक्सीडेंट क्या हुआ, कैजुअलिटी मीन्स एक्सीडेंट, पहली घटना क्या घटित हुई कि सस्पेंशन मीन्स टेम्परेरीली
किसी चीज़ को रोक दिया जाना, सस्पेंड किया जाना, कि जो डेली जो है रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, ट्रेन हाल्ट होता था, ट्रेन को ठहराया जाता था, रोका जाता था, वो जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रेन को जो है उनके स्टेशन पर नहीं रोका जाता है। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। अब यहाँ पर जो है अब्दुल कलाम क्या बताते हैं कि जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडियन जो फोर्सेस थी, आर्मीज़ थी, उनको भी फोर्स किया जाने लगा इन एलिड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तब इंडिया में जो है कुछ स्टेट ऑफ इमरजेंसी जैसा कुछ लागू कर दिया गया था। और जब ये आपातकाल लागू कर दिया गया था तो वहाँ भी एक घटना घटित हुई उनके एरिया में। वो घटना क्या थी कि डेली जो न्यूज़पेपर जो ट्रेन उनके गाँव, उनके कस्बे से होकर के निकलती थी, उनके स्टेशन पर ठहर करके जाती थी, रुक करके निकलती थी, उस स्टेशन को जो है उस ट्रेन को उनके स्टेशन पर नहीं रोका गया, जिस वजह से जो है वो जो न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करते थे, वो कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ अंदर से ही जो है न्यूज़पेपर्स को बंडल बना करके जो है बाहर रोड पे फेंक दिया गया, क्योंकि ट्रेन जो है वहाँ पर रुकी नहीं, इसलिए जो है उनके न्यूज़पेपर्स को जो है ऐसे ही बाहर फेंक दिया गया चलती ट्रेन से। ऑन द रामेश्वरम रोड, उनको रामेश्वरम रोड के ऊपर जो है फेंक दिया गया, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो कि कहाँ पर है ये रोड, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरता है। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मेरे जो कजन थे शमसुद्दीन, उनको जो है इसके लिए क्या चाहिए था, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे शमसुद्दीन, और अब उनको जो है न्यूज़पेपर बांटने में किसी की सहायता चाहिए थी, उनको कलेक्ट करने में किसी की सहायता चाहिए थी, और वो ऐसे ही किसी सहायक को ढूंढ रहे थे, और नेचुरली मेरे से अच्छा जो है ये काम कौन कर सकता था उनके लिए, और मैंने उनकी इस ज़रूरत को फिल किया। आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने जो है इस वैकेंसी को, इस रिक्तता को जो है फिल किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और मेरे भाई शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की मेरी पहली कमाई करवाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। और आधी सेंचुरी के बाद, 50 साल के बाद भी जो है मैं अभी भी क्या फील करता हूँ, बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ, अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मैंने जो है पहली बार अपने आप अपनी मेहनत से जो है पैसे कमाए थे। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पहली बार जो है वो पैसे कमाए थे। और उसके लिए जो है जब वो ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, उस टाइम भी जो है बड़ा फ़ख्र से बोलते हैं कि मुझे आज भी जो है उन पैसों पर, अपने पैसों पर थोड़ा सा कमाना अच्छा लगता है, घमंड महसूस होता है कि मैंने अच्छा काम किया। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। अब वो क्या बताते हैं, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, हर एक बच्चा जो है जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ इनहेरिटेड, जन्म से ही जो है उसके पूर्वजों से मिली हुई कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ गुण होते हैं। इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और वो किस तरह के एरिया में, किस तरह के एनवायरनमेंट में जन्म लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में जो है उसका जन्म होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़, और जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़ कौन हैं, जो उसके घर वाले हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, वो सब जो उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको ट्रेन करते हैं। जिस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसी उसको ट्रेन भी करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब वो क्या बताते हैं कि उन्हें जो है वसीयत के तौर पर अपने जन्म के समय में अपने पेरेंट्स से क्या मिला था, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर,
और अपनी माँ से उन्हें क्या मिला था? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और उनको अपनी माँ से जो है अच्छाई में विश्वास, भगवान में विश्वास और दयालुता अपनी माँ से मिली थी। सो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि उनको जो है अपनी फादर से जो है ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने जन्मजात जो है प्राप्त हुआ था, और अपनी माँ से क्या मिला था? सच्चाई और अच्छाई में विश्वास, दयालुता, ये सब उन्हें अपनी माँ से मिला था। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ऐसा ही सब कुछ जो है मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अभी तक तो वो अपने फैमिली के बारे में बता रहे थे, अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, और वो किसके बारे में बताते हैं? अपने दोस्तों के बारे में। कि मेरे जो है बचपन में 3 बड़े अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक था रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों बच्चे जो है कहाँ से, किससे बिलोंग करते थे? प्योर जो है ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। बच्चे होने के नाते हमें कभी भी जो है कोई अपने आप में कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ, कभी महसूस किया ही नहीं हमने। कोई भी हम ऐसा कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम डिफरेंट रिलीजियंस से बिलोंग करते हैं या हमारे अंदर कुछ भी जो है अलग है एक दूसरे से। और क्योंकि जो है हमारे रिलीजन डिफरेंस थे, हमारी जो अपब्रिंगिंग क्या होता है, पालन पोषण, उन सब से हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम जो है एक दूसरे से कभी अलग हैं। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और उसका जो एक दोस्त था रामानंद शास्त्री, वो तो वास्तव में जो है उस टाइम के जो रामेश्वरम टेम्पल में सबसे बड़े पुजारी थे, सबसे बड़ी पोस्ट पर थे मंदिर में, उनके बेटे थे। और उनके रामानंद शास्त्री के फादर का क्या नाम है? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में बड़ी पोस्ट पर थे, हाई प्रिस्ट, सबसे बड़े पुजारी थे। और उस टाइम में जो है किसी भी मंदिर में जो है कोई बड़ा पुजारी होता था, उसकी पोस्ट बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय होती थी और उसको धर्म का ज्ञाता माना जाता था। लेकिन जो है कभी भी रामानंद पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि वो जो है धर्म के नाम पर भेदभाव करें। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में जो है ये सेम पोस्ट जो है रामानंद शास्त्री को मिल जाती है। उनके फादर जब इस पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं तब उनको जो है ये पोस्ट रामानंद शास्त्री को दी जाती है। वो भी जो है रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। सो अभी हमने जो है इन 2 पैराग्राफ्स में क्या पढ़ा है? 3rd पैराग्राफ में हमें जानने को मिला कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है कि 1939 में हुआ था स्टार्ट। और उस टाइम पे अचानक से मार्केट में जो है टैमरिंड, इमली के बीजों की डिमांड बढ़ जाती है। और APJ अब्दुल कलाम क्या करते थे? डेली जो है इमली के बीज इकट्ठा करते थे और उनको किसी अपनी मस्जिद वाली गली में प्रोविजनल स्टोर पे बेच के आते थे और उनको डेली 1 आना उससे मिलता था। 1 आना कितने पैसे के बराबर होता है? इंडियन कॉइन होता है, जो कि 6 पैसे के बराबर होता है। अब वो क्या बताते हैं नेक्स्ट कि वो उनको जो है वहाँ पर एक उनका रीजनल एक न्यूज़पेपर आता था, दीनामणि, जिसमें वो इस के बारे में पढ़ते थे और अपने भाई शमसुद्दीन से भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हेडलाइंस उनको मिलती रहती थी। और फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है अपनी पहली कमाई कब की थी? जब उनके भाई कजन जो है शमसुद्दीन को एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर ये हेल्पिंग हैंड कौन बना था? APJ अब्दुल कलाम बने थे और उनको पहली बार जो है अपनी मेहनत की कमाई प्राप्त हुई थी और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें उन्होंने क्या बताया है कि हर कोई बच्चा जो है अपने साथ कुछ अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के गुण लेकर के पैदा होता है और जो गुण उसके अंदर होते हैं उन्हीं को जो है उनके परिवार वाले जो है ट्रेन करते हैं उनमें उसको। और मुझे जो है अपने माता पिता से क्या मिला था? अपने पिता से उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी मिली थी। अपनी माँ से उनको जो है
सच्चाई और अच्छाई में विश्वास, दयालुता जैसे गुण जो अपनी माँ से मिले थे, और वैसे ही गुण जो उनके भाई बहनों में भी थे। और उनके 3 चाइल्डहुड के फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। और ये तीनों ही लड़के जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिली, जो पूरी तरह से जो है रीति रिवाजों को मानने वाले हों, प्योर ब्राह्मण हैं। लेकिन कभी भी इन बच्चों में जो है अपनी पालन पोषण या अपने धर्म के नाम पर कोई भेदभाव जो है कभी महसूस नहीं किया गया था। बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। और रामानंद शास्त्री तो जो है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी के तौर पर जो है नियुक्त किए गए थे। ये एक बहुत ही हाई पोस्ट होती थी। और उसके बाद जो है रामानंद शास्त्री ने इस पोस्ट को संभाला था। उनके दूसरे दोस्त अरविंदन क्या करते हैं? अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने बड़े होकर के जो है क्या बिजनेस शुरू कर दिया, जो श्रद्धालु अपने कुछ विजिट वगैरह करते थे, अपने धाम पर जाते थे, कहीं पर भी जो है रिलीजियस प्लेसेस की यात्रा करते थे, उनकी ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का काम जो है अरविंदन ने संभाल लिया था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और उनके जो तीसरे दोस्त थे शिव प्रकाशन जो है वो साउदर्न रेलवेज में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जो ट्रेन में खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है यात्रियों के लिए, वो कार्य जो है शिव प्रकाशन ने संभाल लिया था। सो इस तरह से हमें पता चला कि उनके 3 दोस्त कौन थे, और उन तीनों ने जो है बड़े होकर के क्या क्या बिजनेस किया, क्या क्या काम स्टार्ट किया। रामानंद शास्त्री जो थे उन्होंने अपने फादर की पोस्ट संभाल ली थी, बड़े पुजारी बन गए थे। अरविंदन जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम संभाला था उन्होंने पिलग्रिम्स की सहायता के लिए। और तीसरे जो थे शिव प्रकाशन, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने थे, जो कि साउदर्न रेलवेज में खाना प्रोवाइड करने का काम करते थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर यहीं तक करेंगे और कल इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी क्वेरीज़ हैं, आप उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।